Hello everyone, welcome back to GrowMed. I am Dr. Padmini, your mentor for the FMG. As the exam is around the corner and we are left with just 30 days. So at this moment we need to give your 100% to pass this exam. 30 days या फिर 1 month सुन के हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है ना, तो मेरी भी हो रही है बिकॉज आई एम नॉट गिविंग दिस एग्ज़ाम, बट कहीं ना कहीं मतलब मेरे फ्रेंड्स दे रहे एग्ज़ाम, फिर और बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे, तो आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. So don't you guys worry because I am here with you all to help you all in this revision या फिर जो भी ये जर्नी है FMG में, to help you all and we will be clearing this exam very easily. So a few suggestions I want to give now. जो भी last 1 month बचा है, what preparation you need to do and how you need to prepare for the FMGE, and as this is the final match now, मतलब कि ये सेमी फिनाले है this 1 month, you need to practice for the final match ताकि your final match will be excellent and you will be winning in the final match. अभी T20 भी चल रही है, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो इसीलिए we can say that हमारी ये जो लीग है T150 वाली, so we will be winning this exam and we will be celebrating it. Okay, for this last 1 month what you need to do, I will be sharing 3 most important things which you must follow. The first one is to do the revisions. ठीक है, तो revisions करना छोड़ना मत. So if at all you know the subject very well, you have revised 2-3 times, but still don't stop revising it because we tend to forget the things and we cannot forget that इन द लास्ट मिनट. ठीक है, तो मतलब 6 महीने की जो मेहनत है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स एंड आई वुड से कि इन्वेस्ट मोर ऑन द टॉपिक्स विच यू नो कि ये श्योर आने वाले हैं एंड दिस विल हेल्प यू टू स्कोर. ठीक है, तो मान लो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट डन लाइक एनेस्थीसिया, डर्मा, फिर जो ये ऑर्थोपेडिक, डोंट फोकस मच ऑन देम बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स यू नो मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज वाला है नहीं ये वाला. तो इफ़ यू ओनली लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डू द रैपिड रिविजन वीडियोस ऑल्सो, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. तो इसीलिए डोंट गिव मच टाइम फॉर दीज सब्जेक्ट्स. इंस्टेड focus on the subjects like the surgery, then the OBG, PSM, which will be giving you a lot of marks. एंड ओके, आई हैव रिटन दोज थिंग्स हियर ताकि मेरे को भूलने की थोड़ी सी बीमारी है एंड आई फॉरगेट द थिंग्स, राइट. तो फिर मेरे को बाद में लगता है कि वीडियो में कि वाई डिड नॉट आई से दिस पॉइंट, इसीलिए मैंने सारे नोट डाउन करके रखा है. आई विल बी सेइंग दिस टू यू. तो देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, स्पेशली द सब्जेक्ट. इफ यू हैव नॉट रेड एनी सब्जेक्ट देन डोंट स्टार्ट इट नाउ बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम. मतलब कि स्टार्ट करेंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे फिर रिवाइज करेंगे, इतना टाइम है ही नहीं. तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट लुक एट द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स asked from that subject and solve the MCQs, previous year questions, and yeah, that one will be more than enough for the subjects which you have not started. And अगर आपने जो major paper 1 के जो subjects है, these are a major subject for this June session because questions are repeatedly asked on these मतलब difficult और tricky questions पूछे जाते हैं paper 1 वाले पे. तो the pharma, then pathology, micrology, ENT, microbiome, ENT, so you need to concentrate more on these subjects. ठीक है, then देखो another important thing I want to say is if at all you have not covered your syllabus then don't try to, because syllabus कभी ख़त्म नहीं होगा. Okay, just keep on revising the things what you have read because revisions are only the things which will help you to pass this exam. Then in the last moment now you need to focus more on the repeat topics because repeat topics play a very important role because they are repeated frequently in all the exams and they will easily help you to score at least 15-16 marks, मतलब the previous year questions also. And this is how you will be revising or studying in the last 1 month. The second most important thing is the previous year questions. So have a look at the previous year questions. मतलब भले ही अपना भी एक बार सॉल्व कर लिया हो, but don't forget those things and be in touch with them. तो if you are not solving also keep on looking at them, revise करते रहना previous year questions. And then the third important thing is as I have said, don't go behind the syllabus. Syllabus कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है and अभी तक भी you know some people have not given the GTs even once. तो this is actually a bad thing and you need to give the GTs. मतलब GTs से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है. ठीक है, तो
डोंट गो बिहाइंड द सिलेबस। भले ही सिलेबस नहीं खत्म हुआ, जितना खत्म हुआ उसको रिवाइज करना एंड उसकी जीटीज आप लोगों को देनी पड़ेंगे। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, तो पैटर्न अभी चेंज हो गया है, यू विल बी हैविंग द टाइम बाउंड सेशंस, तो हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो एंड प्रैक्टिस द एमसीक्यूज अकॉर्डिंगली। तो मिक्स बैग के एमसीक्यूज सॉल्व करना एंड कीप अ टाइमर ऑफ 50 मिनट्स एंड 50 मिनट्स में ट्राई टू सॉल्व द 50 क्वेश्चंस। एंड इम्पॉर्टेंट सजेशन आई वॉन्ट टू गिव, जो मैंने भी किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में, इज़ दैट आई यूज टू नोट डाउन द थिंग्स जो मेरे रॉन्ग होते थे। तो मैंने एक छोटी सी नोटबुक बना ली थी एंड इन दैट आई यूज टू जस्ट कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो मैंने नोट्स में वो पॉइंट नहीं है, तो आई यूज टू नोट इट डाउन एंड आई यूज टू लुक इट एट, मतलब जब भी मेरे फ्री टाइम में रहेगा आई यूज टू लुक एट इट। एंड फॉर द लास्ट 6 days in that time, please do not give any MCQs, any GTs. उस टाइम में what you need to do is only focus on the revision. तो you need to keep on revising the things, क्योंकि you know आता तो सब है सबको, बट चीज़ें भूल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरी ही बात ले, आई हैव गिवन द एग्ज़ाम एंड नाउ राइट नाउ आई एम नॉट स्टडिंग, मतलब मैं इतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर रही हूँ जितना मैं एग्जाम के लिए करती थी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी नाउ इज़ आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स, सीरियसली आई एम फॉरगेटिंग द थिंग्स। तो जो न्यूमेरिकल्स है, PSF के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज, मतलब उस टाइम पे मेरे को आई यूज टू नो सब कुछ, मेरे को बहुत अच्छे से पता था। नाउ जैसे कि रिविजन नहीं है, इट्स अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 3-4 months, आई एम नॉट इफेक्टिवली इन टू दिस स्टडीज़, तो मेरे को चीज़ें भूल रही है। तो इसीलिए दिस कैन हैपन विथ यू ऑल्सो एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट द थिंग्स। तो इसीलिए कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स इफ एट ऑल। भले ही आपको पता हो, जस्ट देखते रहना ना, बुक खोल के रीड करते रहना उन चीज़ों को। Okay, so this is how you need to prepare for your last 1 month, that is concentrate more on the revision than repeat topics and the previous year questions, because previous year questions plays a major role। मतलब 15 to 16 डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है। तो इफ इट ऑल इफ नॉट लुक, मतलब अगर आपने PYQs अच्छे से नहीं करे हैं तो देयर आर चांसेस दैट वो भी आपके गलत हो सकते हैं। मतलब ईजी वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, लुक एट द बेसिक्स, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द बेसिक्स ऑल्सो इन द FMG एंड तब बहुत बुरा लगता है इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व इवन द बेसिक्स। ओके, तो कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द बेसिक्स। जून सेशन में यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द फार्मा, पैथो, माइक्रो एंड द ENT। ओके, सो कीप दीज थिंग्स इन द माइंड एंड अगर अपने आप से डिवाइड करना टाइम को, जितना भी जो भी सब्जेक्ट में टाइम लग रहा है उसको टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि सबका मतलब अपना अलग अलग होता है। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी को कोई चीज़ लेट समझ में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट प्लान योर वे एंड यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द 150 मार्क्स, बिकॉज 149 वाले भी इक्वल टू 0 है इसमें एंड 300 स्कोर वर्क करने वाला भी 150 के बराबर ही है। ठीक है, तो रैंकिंग वाला सिस्टम कुछ नहीं है, इसलिए डोंट टेक मच प्रेशर। अगर आपकी GT में मतलब 200 क्रॉस नहीं कर रहे, 200 क्रॉस नहीं कर रहे, तो ऐसे करके डोंट वरी एंड जस्ट हैव बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर प्रिपरेशन, कि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से करा हुआ है एंड आई कैन ईजिली क्लियर दिस एग्जाम। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू न्यू टू ग्रोमेट, सब्सक्राइब टू ग्रोमेट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।